morning, church. Today we have Hilary with us to join us in this worship. We all know that what was his condition. He could not even speak some words properly. But today, I give glory to God that He remembers all the worship songs. Yes, Lord. And even though he has this memory issues, he is able to recollect all the new songs, new worship songs. All glory to God. And today he is there with us to glorify God. Amen. Amen. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु तेरी गाए आसमां, गाए ज़मीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है, अंधेरों में तू रोशनी है, तेरा ही नाम जिंदगी। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। Thank you, Jesus.
morning, O God. For we belong to you. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my
thousands. My beloved is the most beautiful amongst thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Seek His face this morning. My beloved is the most beautiful amongst thousands and thousands. My beloved is the most beautiful amongst thousands and thousands. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. And yours is the kingdom, yours and the power, yours
kingdom and the glory and the honor. Let your kingdom come, Lord. Let your will be done on earth as it is in heaven. All glory to you, Lord. All glory to you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. We honor you this morning. Amen. Good morning, church. And we're partaking right now in this bread and wine. And let's proceed with the reading from Matthew chapter 26, verse 26 to 28. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and broke it and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." And he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink you all of it, for this is my blood for the New Testament, which is shed for many for the remission of sins." Let us pray. Heavenly Father, I praise you and I thank you. Thank you for giving us the opportunity for this bread and wine. Thank you, Lord, the covenant you made with us. We remember your Son, Lord Jesus, what you did for us on the cross of Calvary. Thank you, Lord, for the bread. Thank you for the wine, for your body and for your blood. Thank you, Lord, for your stripes. We are healed. I thank you for this time, Lord. You have given us this grace period, Lord, to come more closer to you, Lord, to meditate on you. And I thank you, Lord, for your gift, Lord, for your grace, Lord. Thank you for many things you have done for each one of us. And as we partake this bread and wine, restore our soul, our mind, our body. Heal us, all those who are sick, strengthen them, bless them. Thank you. Thank you, our Father. In Jesus' name we pray. धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद सहित यहोवा परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आते हैं। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस समय के लिए, जब हम एक साथ मिलके परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर से सुन सकते हैं, परमेश्वर की और दृष्टि कर सकते हैं और उसकी आवाज को जो इस समय में बहुत लाउड और क्लियर है। The Lord is speaking loud and clear to the church in these days and we have to understand this is a season। ये वो ऋतु है जब खुदावन चाहता है कि कलीसिया उससे बातचीत करे, उसकी सुने, क्योंकि बहुत समय कलीसिया हमने उसको सुना ही नहीं। हम अपनी बातें उसको सुनाते रहे, हम अपनी रीति से काम करते रहे, लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि जो वो बोलता है हम उससे सुने। और उसने ये लॉकडाउन इसीलिए हमारे जीवन पे अलाउ किया क्योंकि हम जाने अनजाने में बहुत दूर परमेश्वर से चले गए थे। कलीसिया बहुत दूर चली गई थी और इसी विषय में परमेश्वर ने कुछ बातें मेरे दिमाग में, मेरी आत्मा में डाली और मेरे दिमाग और दिमाग को उसने तरोताज़ा किया। आत्मा को उसने अपने आत्मा के द्वारा एक नया भोजन दिया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वो समय है जबकि हमारा कुम्हार चाक पे बैठा है, यहोवा परमेश्वर, और वो एक नई रीति से कलीसिया को बना रहा है। और बहुत जल्दी, बहुत प्रोफेटिकली मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत जल्दी वो चीजें इमर्ज होंगी, वो चीजें दिखाई देंगी कलीसिया में जो खुदावंद ने नई कर दी हैं।
और जिनको हम अभी देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम बहुत भली भांति उनको देखेंगे। खुदावंद नया काम एक कर रहा है, और जो समय है उसमें परमेश्वर मेनली उन बातों से डील कर रहा है जहाँ पे मिनिस्ट्रीज प्रमोट होती थी, लेकिन किंगडम का काम, परमेश्वर के राज्य का काम प्रमोट नहीं होता था। सब अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज, अपना अपना राज्य, अपना अपना शासन बढ़ा रहे थे, लेकिन खुदावंद की तरफ ध्यान कम था। और एक समय आता है जब परमेश्वर थक जाता है। हाग्य की पुस्तक में लिखा है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर की तरफ भागा जाता है। और ऐसा ही कुछ हो रहा था, सब अपने अपने घर की तरफ भाग रहे थे। और हर एक का अपना अपना एजेंडा था, अपना अपना प्रोग्राम था, अपनी अपनी योजना थी, लेकिन कोई भी ये सोचने की कोशिश नहीं कर रहा था कि परमेश्वर का एजेंडा क्या है। सो प्रभु को ये भाया, और प्रभु ने ये जरूरी समझा कि वो कलीसिया से कुछ ऐसे विषय में डील करे जहाँ पे हम उससे बहुत दूर चले गए थे। प्रियजनों, मैं बताना चाहती हूँ कि एक समय आया, योना की पुस्तक में लिखा हुआ है, एक समय आया, और ये जो लॉकडाउन है वो मुझको उसको रिमाइंड करता है उसी समय को, जब योना मछली के पेट में था और वो चाह कर भी तरशीश को भाग नहीं सकता था, उसको वहीं रहना था। और 3 दिन तक वो वहां रहा, और तब उसने अपना ध्यान फिर से यहोवा की तरफ केंद्रित किया, और यहोवा ने उसको क्षमा किया और फिर से उसको उठाकर खड़ा किया कि वो नीनवे को जाए और जैसा यहोवा कहता है वैसा वो बोले। प्रियजनों, आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है वो एस्तर की पुस्तक में से है, और हम चलेंगे एस्तर क्या पुस्तक, उसका 1 अध्याय निकालेंगे, और उसका 1 अध्याय में उसका 1 से 7 वचन। पूरा हम पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको समझा दूंगी कि वहाँ क्या लिखा है, क्योंकि पढ़ने से बहुत समय निकल जाता है। लेकिन ये भी मैं आपसे जरूर कहूंगी कि आप पढ़िएगा जरूर, क्योंकि बिना पढ़े हुए आप समझेंगे नहीं कि मैं क्या बात कर रही हूँ और खुदा का आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है। एस्तर की पुस्तक 1 से 7, फिर 9 वचन, 9 से 12 वचन, और फिर 12 वचन के बाद हम थोड़ा बीच में छोड़कर 19 से 20 पद पढ़ेंगे, और उसके बाद आगे जैसा प्रभु का आत्मा चलाएगा हम चलेंगे। सो एस्तर की पुस्तक 1 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब शेयर्श राजा राज्य करता था तो उसने उन दिनों में उसने 180 दिन तक लिखा है, उसने 180 दिन तक, इन दिनों में जब शेष राजा अपने उस राज पद पर विराजमान था जो शूशन नामक राजगढ़ में थी, वहां उसने अपने राज्य के 3रे वर्ष में अपने सब हाकिमों और राजकर्मियों को भोज दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने राज्य के 3रे वर्ष में सब हाकिमों को और राजकर्मियों को एक भोज दिया। तीसरा वर्ष जो होता है, तीसरा दिन जो है वचन में और परमेश्वर के इन द स्क्रिप्चर्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे। इट्स अ डे ऑफ resurrection. It's a day of getting revived. It's a day of starting again. Hallelujah. फिर से शुरुआत का दिन है। सो 3रे वर्ष में राजा ने भोज दिया, और ये जो वचन में आपके सामने पढ़ा, इसको पढ़िएगा, और वहां लिखा उसने भोज दिया, और भोज देने के बाद उसने अपने 180 दिन तक अपने सारे राज्य का वैभव, सारा सोना चांदी, सारी जो कीमती चीजें थी उनका एक डिस्प्ले उसने किया। और डिस्प्ले करने के बाद वहां पे खूब आनंद बनता रहा, लोग आनंदित होते रहे। और फिर अंत में उसने लिखा है, छोटे बड़े, अमीर गरीब, प्रधान और सेवक, स्त्री और पुरुष, सबको 7 दिन तक उसने भोज दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस भोज में उसने अपने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो गरीब, चाहे वो अमीर, चाहे वो छोटा, चाहे वो बड़ा, कोई भी हो, सबको बुलाया।
बुलाने के बाद राजा ने जब सब लोग आनंदित थे, मगन थे, दाखरस दिया गया, सब लोग आनंदित थे। प्रियजनों, कुछ ऐसा ही समय खुदावंत की कलीसिया में इस समय परमेश्वर पिछले दिनों लेकर आया। उसने कलीसिया को भरपूर अपने सामर्थ का प्रदर्शन किया। The power of the Holy Spirit was manifested in a glorious way in this church. बहुत अद्भुत रीति से खुदा की आत्मा ने अपने आप को कलीसिया के ऊपर, दुनिया के ऊपर प्रकट किया। चिन्ह और चमत्कारों के साथ परमेश्वर ने अपने महात्म्य को दिखाया अद्भुत रीति से। यहाँ तक कि मुर्दे जीवित हुए बहुत सी मिनिस्ट्रीज में, और बहुत से प्रभु के दासों को परमेश्वर ने भरपूर इस्तेमाल किया। जवान लोगों को परमेश्वर ने, बुजुर्ग लोगों को, बच्चों को, हर एक को खुदावंद ने इस्तेमाल किया। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि बजाय कलीसिया एक नया दाखरस में आनंदित होने के बजाय कुछ डाइवर्जन हो गया। सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया, है ना। यहां पर लिखा हुआ है कि जब राजा ने भोज दिया, बड़ा आनंद मना, और तब जब सब लोग आनंद कर रहे थे, when the power of the king was the manifestation of the power of the king was at its peak, जब राजा ने अपने राज्य के पराक्रम को बिल्कुल ऊंचाई पर करके दिखाया और सब लोग उसमें आनंदित थे, सब लोग उसमें मगन थे, तब उसने अपने 4 लोगों को, 9 पद में लिखा है, उसने 4 लोगों को, 4 खोजों को भेजा रानी वष्टी के पास, और उसने कहा कि जाकर वष्टी से कहो कि आए और अपने आप को आकर लोगों के सामने प्रकट करे, लोगों को दिखाए। राजा ने बड़े मन से रानी के पास अपने लोगों को भेजा था कि रानी आएगी और अपने खूबसूरती को, अपने स्प्लेंडर को, अपने जो भी उसका रूप है, जो भी उसके गुण हैं, उनको वो अपने मेरी प्रजा के सामने प्रदर्शित करेगी। लेकिन वहां लिखा है कि रानी उस समय अपना भोज कर रही थी। The queen was having her own agenda. The queen had a different banquet. There was a banquet of the king and there was a banquet of the queen. I hope you are understanding what I am saying. राजा का लाला शेरश का भोज चल रहा था और इधर रानी ने अपना भोज चालू कर दिया था, और कुछ इस तरह का भोज उसने चालू किया था कि वो अलग से अपना प्रोग्राम कर रही थी। बड़ी अजीब बात है। आप में से बहुत से मैरिड लोग हैं और इस बात को जानते हैं, जब पति कुछ करता है तो पत्नी को अलग से पार्टी थ्रो करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जब पत्नी पार्टी देती है तो पति को अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक हैं। और बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है कि यदि पति ने जब सबको, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, गरीब अमीर, सबको जब उसने बुलाया हुआ है, तो पत्नी यदि दूसरा भोज तैयार कर रही है, इसका अर्थ यह है कि पत्नी जो है वो एरोगेंट है, घमंडी है, अहंकारी है, और वो दिखाना चाहती है, उसका दम्भ अपना है कि मैं अपना काम अलग कर रही हूँ। मेरे प्रियो, कुछ ऐसा ही कलीसिया के भी साथ हुआ था। परमेश्वर अपना काम अद्भुत रीति से कर रहा और करके चाहता। उसका पिछले कुछ सालों में, कुछ सदियों में खुदावंद ने चाहा कि कलीसिया इन्वॉल्व हो उसके एजेंडा में, उसकी योजना में, और बार बार उसने कुछ न कुछ करके हमको बुलाना चाहा, लेकिन हमने आना नहीं चाहा। हमने अपने अपने क्लब्स, सोशल क्लब्स खोल रखे थे। हम सबके पास अपने अपने सोशल क्लब्स थे, सबके पास अपना अपना एजेंडा था। कर ऐसा रहे थे जैसे राजा का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार कहीं ना कहीं अपना ही हो रहा था। कई बातें हमको कई बार कड़वी लगती है, लेकिन कड़वी बात सुन के ही हमको आशीष मिलती है, क्योंकि जब हम सत्य को जानते हैं तो सत्य हमको स्वतंत्र करता है। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, हम मीठे मीठे प्रोस्पेरिटी डॉक्ट्रिन के वचन सुनते रहेंगे,
हम सूदिंग बातों को सुनते रहेंगे कि कल बहुत अच्छा दिन आएगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, खुदावंद आपको आशीष देगा, आपको बड़ी बड़ी कार देगा, बड़ा बड़ा बंगला देगा, आपको नौकरी देगा, आपको आपकी शादी कराएगा। जब तक हम ये बातें सुनते रहेंगे कि इतना 30,000 3,000 दे दो तो 30,000 मिल जाएगा, तब तक इन बातों को हम सुनते रहेंगे तो ये तो एक और ही गॉस्पेल है। पौलुस कहता है कि मुझे ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि जो इतनी जल्दी तुम मुख्य सुसमाचार से मुड़कर कुछ और ही समाचार पे ध्यान लगाने लगे, वो समाचार जो सुसमाचार है ही नहीं। और पौलुस ये भी कहता है कि यदि वो सुसमाचार जो हमने तुमको सुनाया है उसको छोड़, यदि कोई दूसरा सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो यदि वो स्वर्गदूत भी हो तो उस पर हाय। प्रियजनों, बड़ी गंभीर बात है कि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ डिकेड्स में कलीसिया बड़ी अद्भुत चीजों के पीछे भागने लगी थी। उसका अपना एजेंडा हो गया था और तब परमेश्वर को यह भाया कि उसने कुछ ऐसा अलाउ किया कि वो चाहता है अब कि हम अपने सेंसेस में वापस आ जाएं। He wants us to come back to our senses। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब रानी ने आने से इनकार कर दिया तो राजा क्रोध से जलने लगा। प्रियजनों, हमने हमेशा यह प्रचार सुना है कि परमेश्वर प्रेम है। निश्चित रीति से परमेश्वर प्रेम है, लेकिन यदि परमेश्वर प्रेम है तो परमेश्वर एक आग भी है, और परमेश्वर उन लोगों से जो उससे प्रेम रखते हैं, यदि वो दूसरी चीजों में लिप्त हो जाते हैं तो परमेश्वर जलने लगता है ना। ही इज अ जेलस गॉड ऑल्सो। और यहाँ पे लिखा है कि जब वष्टि ने आने से इनकार कर दिया तो राजा क्रोध से जलने लगा और उसने अपने लोगों से पूछा, अपने काउंसलर्स से पूछा, सलाहकारों से पूछा कि अब हम क्या करें। तो एक सभा बैठी और सभा में इस बात का निर्णय लिया गया। लोगों ने कहा कि देखो, इसने जो आने से इनकार कर दिया है तो ये तो बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि ये तो एक पैटर्न बन जाएगा और आने वाले समय में लोग यही कहेंगे कि रानी ने आने से मना कर दिया। तो अब ऐसा किया जाए, रानी वष्टि को अब कभी भी राजा के आंगनों में आने की आज्ञा ना मिले। She should never be allowed to come into the courts of the kings any longer। और उसके बाद मेरे प्रिय वचन में लिखा है कि वष्टि को आज्ञा न मिली कि वो राजा के आंगनों में प्रवेश करे। और क्योंकि वष्टि राजा के आंगनों में प्रवेश न कर सकी, इसलिए वहां लिखा है 20 पद में कि उन्होंने ये कहा कि वष्टि की जगह एक बेहतर रानी को बुलाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। एक बेहतर रानी, अ बेटर क्वीन, अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है। सो लेट अस कॉल अ बेटर क्वीन। और एक बेहतर रानी आई। अब बेहतर का अर्थ होता है बेटर, है ना, something which was good, but someone worked on it and now it has become better to become the best. Something good can never become the best. It has to become better. Praise the Lord. कोई भी अच्छी चीज बहुत अच्छी बेहतर होने से पहले नहीं बन सकती है। सो खुदावंद ने इस वचन के द्वारा मुझे यह समझाया कि रानी एस्तर जो थी वो एक अच्छी रानी थी, बट बाय द वर्किंग ऑफ द पावर ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, खुदा की आत्मा ने उस पर काम किया, वो एक बेहतर रानी बनी और बेहतर रानी बनकर वो राजा के सामने आई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, समय आ गया है कि कलीसिया बताए और जाने कि ये समय परमेश्वर इस समय में हमसे क्या चाहता है।
देखिए, जब एस्तर आई तो एस्तर जो थी डरी हुई थी, घबराई हुई थी। एस्तर घबराई हुई थी, डरी हुई थी, और एस्तर चाहती थी कि वो जाने कि उसको आगे किस रीति से चलना है। और जब एस्तर घबराई और डरी हुई थी क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रही थी, ऐसे समय में मुर्दकाई आया। ऐसे समय में मुर्दकाई आया, और मुर्दकाई it's symbolic. He's symbolic of the Holy Spirit. वो रूपक है पवित्र आत्मा का पुराने नियम में। राजा जो है वो यहोवा है, रानी जो है वो एस्तर है। पहली रानी वास्ती, उसके बाद एस्तर जो है वो कलीसिया है। राजा जो है वो शेर्श है, यहोवा का रूपक है। एस्तर जो है वो कलीसिया की रूपक है, और मुर्दकाई जो है वो पवित्र आत्मा का रूपक है। और जो आगे चल के मैं बताऊंगी, इसमें हमको यीशु मसीह की भी एक छवि दिखाई देती है, एक रूप दिखाई देता है इस पूरे एस्तर के किताब में। एस्तर की किताब मात्र एक ऐसी किताब है जिसमें खुदा का नाम, द वर्ड गॉड इज नॉट देयर इन द बुक ऑफ एस्तर, लेकिन पूरे किताब में त्रिएक परमेश्वर छाया हुआ है और कलीसिया भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सुंदर किताब है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो एस्तर अपनी आइडेंटिटी छुपा रही थी। एस्तर ये भी चाहती थी कि वो जाने उसको आगे कैसे चलना है, क्योंकि वो दिल से बहुत बेहतर रानी थी, बहुत अच्छी रानी थी, और किसी भी तरीके से अपने आप को खर्च करने को तैयार थी। शी वॉज अ पर्सन विलिंग टू बी स्पेंट फॉर द ग्लोरी ऑफ हिज पीपल, फॉर द ग्लोरी एंड रिडेम्पशन ऑफ अ पीपल। सो एस्तर के पास मुर्दकाई आता है। मुर्दकाई द टाइप ऑफ द होली स्पिरिट, एंड मुर्दकाई उससे आकर कहता है, उससे सहायता मांगता है। मेरे प्रियजनों, बड़ी अद्भुत सी बात है कि हम इंसान हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को इस घड़ी हमारी सहायता की आवश्यकता है। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, द होली स्पिरिट नीड्स यू। हालेलुया। द होली स्पिरिट नीड्स यू, एंड द होली स्पिरिट वांट्स यू टू wants us to understand that he cannot work unless we give him a helping hand. So please understand what God wants. Praise the Lord. Hallelujah. So मुर्दकाई आता है उससे, और 4 पद में मुर्दकाई आके उससे कहता है, 4 से 13 से आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा, 4 पद में लिखा हुआ है। So मुर्दकाई comes and says to Esther, इफ यू रिमेन, यदि ऐसे समय में हम निकाल लेंगे उसको और हम पढ़ेंगे। मैं चाहूंगी कि आप लोग पढ़ें उसको, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। और मुर्दकाई ने उससे आकर पूछा, कहा एस्तर से कि यदि तू ऐसे समय में शांत रही तो यहूदियों का छुटकारा तो हर हाल में होगा। If you remain silent now, the Jews, the redemption for the Jews will come from some other quarter, but you along with your household will perish. कलीसिया, इस समय खुदा की आवाज बहुत क्लियर है। वस्ती का रोल खत्म करिए, एस्तर के रोल में आ जाइए। और एस्तर, आप भी यदि आप ये समझें कि आप बेहतर हैं, तो आप राजभवन में छिप जाएंगी और यहोवा का बल आपके ऊपर बढ़ता रहेगा, अनुग्रह बढ़ता जाएगा। तो ये गलत फहमी है, क्योंकि राजा के भवन में हम छिप के बचे नहीं रह सकते। हमको अपने लोगों के छुटकारे के लिए निकलना ही होगा। प्रियजनों, यदि हम ना भी निकले तो हिंदुस्तान तो बचेगा, छुटकारा तो होगा, कलीसिया तो जीवंत होगी, लेकिन हम अपने घराने समेत नाश हो जाएंगे। आप कहेंगे हम तो उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम तो कैसे नाश हो जाएंगे?
लेकिन जब खुदा डील करता है तो पता नहीं चलता है कि कब से कब कहाँ पर हमने अपने कार्यों के अनुसार उससे दंड पा लिया या उससे रिवॉर्ड पा लिया. सो बी केयरफुल. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इन माय ओन फ्लैश. आई एम सेइंग व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम गॉड. सो बिलवड, आई जस्ट वाज टेलिंग यू कि मुर्दकाई आया, उसने एस्तर को चेतावनी दी. उसने कहा या तो मेरी सहायता कर, या तो यहूदियों के छुटकारे के लिए खड़ी हो, या फिर ये जान ले कि तू नाश हो जाएगी. प्रेज द लॉर्ड. इस समय जो खुदा की आवाज है कलीसिया के लिए वो बहुत क्लियर है, और खुदावंद यही कह रहा है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है. सो people of God, this is the time God is asking us to arise and shine. जब एस्तर ने ऐसा सुना तो लिखा है कि एस्तर ने उपवास की घोषणा की और उसने 3 दिन तक अपनी सखी सहेलियों सहित सब पूरे पैलेस के लोगों के सहित उसने उपवास किया. और लिखा है कि तीसरे दिन 5 पद में यदि आप चले, वहां लिखा है तीसरे दिन. पहले तो उसने ये कहा कि यदि मैं नाश हो गई तो मैं नाश हो गई, लेकिन मैं उठूंगी और मैं नियम के विरुद्ध राजा के सामने जाऊंगी. प्रेज द लॉर्ड. मैं नियम के विरुद्ध राजा के सम्मुख जाऊंगी. और वो गई और उसने राजा से, प्रेज द लॉर्ड, एक संबंध स्थापित किया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ये समय है कलीसिया, जब कलीसिया को यहोवा परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करना बहुत जरूरी है. हम अपने महल में रहें, हम अपनी दुनिया में रहें और खुदावंद से ये एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे लिए काम करता रहे, ये संभव नहीं है. अब हमको अपने आप ही में आना पड़ेगा. We have to come to our senses. We have to call upon the name of the Lord. We have to be in a relationship with God, because without a relationship, the church can never see the glory of God for which the church is actually called. परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए हमको उससे एक संबंध बनाना बहुत जरूरी है, और संबंध ऐसा कि हम उसके साथ बिल्कुल लीन हो जाएं. हम अपनी समस्याओं को भूल जाएं, हम अपने बोझ को भूल जाएं, और ये जान ले कि खुदावंद हमारे द्वारा कुछ नया करना चाहता है. इसलिए इस दिनों हमको अपने रिश्ते को उसके साथ बढ़ाना है. प्रियजनों, वक्त चुनौती दे रहा है. हम पे एक जिम्मेवारी है, कलीसिया के ऊपर एक जिम्मेदारी है. द चर्च हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बाहर आत्माएं नाश हो रही, बाहर लोग मर रहे हैं, लेकिन हम कंप्लेसेंटली बैठे हुए थे. हम अपना बैंक्वेट कर रहे थे. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? हम सब का अपना अपना बैंक्वेट था. हर एक कलीसिया का अपना बैंक्वेट था. किसी का तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं ना हमारे. कई बार हम लोग बहुत सारे कैंप्स करते हैं. कई बार हम बहुत सारी पिकनिक्स करते हैं. कई बार हमारी डिफरेंट मीटिंग्स होती हैं जिनके पास कोई फाउंडेशन नहीं होता है. We just meet for the sake of meeting. We just have programs which have no spiritual depth, जिनमें कोई आत्मिक गहराई नहीं होती है. कलीसिया में भी कुछ ऐसा ही जब होने लगता है और हो रहा था, तो परमेश्वर को ये भाया कि वो इंटरवीन करे. मेरे प्रियो, अब समय आ गया है कि हम सब अपने अपने हाथों को पूरी तरह खुदावंत के हाथ में दे दें और उससे कहें कि खुदावंत, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे इस्तेमाल कर. मैं भटक गई थी, लेकिन आज मैं तेरे पास आता हूँ. एस्तर रानी ने जब वो भीतरी आंगन में गई,
डरते डरते आई क्योंकि नियम के विरुद्ध आई थी, डरते डरते आई क्योंकि उससे पहले उसने राजा का इस तरह से सामना नहीं किया था। लेकिन जब वो आई भीतरी आंगन में 5 अध्याय में लिखा हुआ है, तो राजा भीतरी आंगन में अपने सिंहासन पर विराजमान था। गुड न्यूज फॉर द चर्च। You see, this is the time for us to come to the holy of holies. बाहरी आंगन में राजा नहीं मिलता, यहोवा परमेश्वर बाहरी आंगन में नहीं मिलता। उसकी दया, उसकी अनुग्रह बाहरी आंगन में नहीं मिलती। उसकी अनुग्रह पाने के लिए, उसकी महिमा पाने के लिए बाहरी आंगन के को छोड़ इसको आउटर कोर्ट को छोड़ना पड़ता है। उसके बाद हमको होली ऑफ होलीज में जाना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। God, the Lord Jehovah, we can find only in the holiest. केवल भीतरी आंगन में। सो राजा अपने भीतरी आंगन में बैठा था, सिंहासन पर विराजमान था, और लिखा है वचन में कि राजा प्रसन्न था। हालेलुया, रहीमा रबा शांदेरे कबा। राजा प्रसन्न था। प्रियजनों, जब हम बिल्कुल अनसेल्फिश मोटिव के साथ खुदा के सामने भीतरी आंगन में आते हैं, तो राजा हमको प्रसन्न ही आज भी मिलता है, क्योंकि खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो ये जानते हो कि पर्दा जो उसके और प्रजा के बीच में था, पर्दा जो उसके और रानी के बीच में था, कलीसिया के बीच, आप कलीसिया के पास एक डायरेक्ट एक्सेस है खुदावंद के पास। पर्दा यीशु के पूरे काम के द्वारा फट चुका है। The temple veil that Moses had put between the mercy seat and the veil that was put between the mercy seat and the sinners, that temple veil has been torn. वो पर्दा फट चुका है, डायरेक्ट एक्सेस है। राजा भीतरी आंगन में बैठा हुआ है। केवल कलीसिया आपसे इतनी इल्तिजा है, इतनी रिक्वेस्ट है कि बाहरी आंगन में बैठकर खेल मत खेलिए, चर्च खेलना बंद करिए, अंदर आइए। भीतरी आंगन में राजा है, उसका राजदंड, the scepter that was there in the king's hand is a symbolic of Jesus Christ. Hallelujah. And राजा के हाथ में जो राजदंड है सोने का, वो यीशु मसीह का रूपक है, और यीशु मसीह हमारे लिए दिया जा चुका है, बलिदान हो चुका है, वो काम को पूरा कर चुका है, वो कह चुका है पूरा हुआ, पर्दा फट चुका है। हमको केवल उस राजदंड की नोक को छूना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस दिन एस्तर ने राजदंड की नोक को छुआ। हालेलुया। राजदंड की नोक को छूने का अर्थ है यीशु मसीह के गारमेंट को कस के आज की सुबह पकड़ लेना, उससे कहना कि मुझे मालूम है शिफा तेरे पास है, आनंद तेरे पास है, जीवन तेरे पास है, बहुतायत का जीवन तेरे पास है। और जब हम ऐसा कहेंगे तो जो बढ़ा हुआ राजदंड है हमारी तरफ, बढ़ा हुआ राजदंड, वो जब हम छू लेंगे तो खुदा की महिमा हमारे ऊपर उतरेगी। उस दिन एस्तर के ऊपर राजा आनंदित हो गया जब राजा एस्तर ने राजदंड को छुआ, और राजा बोला कि मांग एस्तर, मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। क्या बोला राजा? राजा बोला एस्तर रानी, मांग, आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। सो मेरे प्रियो, एस्तर जो थी वो व्यवस्था के समय में जीवित थी, जब आधा राज्य मिलता था। लेकिन आज खुदावंद कहता है कि मांग, आस्क, आस्क चर्च, आस्क।
Don't be Vashti. Come back to me. Be a better queen. वस्ती मत हो, एक बेहतर रानी। एस्तर की नाई मेरे पास आ, भीतरी आंगन में आ, भीतरी आंगन में आके राजदंड को, मेरे बेटे के वस्त्र को छू ले, उसको पकड़ ले, और आज मैं तुझ पर अपने अनुग्रह की, अपनी महिमा। राजा की आवाज यही है कि आज मैं अपनी महिमा की बारिश तुझ पे करूंगा। मैं अपनी सामर्थ को तुझ में पुनर्स्थापित करूंगा। I will re-establish my blessings in your life. नई तरीके से तेरी स्थापना करूंगा। एस्तर, मेरी कलीसिया मेरे पास आ, एक बेहतर कलीसिया, रिफाइन की हुई कलीसिया, फटकी गई हुई, शिफ्ट की हुई कलीसिया मेरे पास आ। मैं तुझको नई रीति से खड़ा करूंगा, नई रीति से इस्तेमाल करूंगा, नई रीति से तेरे द्वारा बातचीत करूंगा, नई रीति से मैं अपना भोज दूंगा, नई रीति से मैं सृष्टि को, जो बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है, उस सृष्टि को, कलीसिया में तेरे द्वारा फिर से उसकी ग्रोनिंग को शांत करूंगा। The groaning of the creation I have heard, the Lord says, और उन ग्रोनिंग्स को मैं तेरे द्वारा शांत करके तुझको पुनर्स्थापित करूंगा, तुझको आगे लेके चलूंगा। मांग एस्तर, मांग चर्च, आस्क चर्च। You see, don't go to the king with a begging word for healing, for small benefits. We serve a big king. Church of God, we serve a very big king. Don't underestimate his authority. उसके बड़प्पन को छोटा ना करें, छोटी चीजें मांगते। राजा बड़ा है, और राजा से जाके 10 रुपए का नोट नहीं मांगा जाता है। राजा के पास जब हम जाते हैं तो राजा से बड़ी चीजें मांगी जाती हैं, और राजा की शोहरत और उसकी इज्जत इसी में होती है कि उससे बड़ी चीजें मांगी जाए। हमारा राजा बड़ा है। All things are possible for our king. There's nothing impossible for Jehovah Father this morning. Come back to him, church, and ask big things. Don't ask blessings. Blessings are your portion. They will follow you. Don't run behind blessings. Church, we are going to resolve today कि हमने बहुत blessings के पीछे भागा है, लेकिन अब blessings कलीसिया के पीछे भागेंगी। I speak prophetically. If we remain like a better queen like Esther, अगर हम एस्तर की नाई एक बेहतर कलीसिया बनेंगे और बनते रहेंगे और चलते रहेंगे और रिश्ता कायम रखेंगे और भीतरी आंगन में आएंगे और राजदंड को छुएंगे और राजदंड पे भरोसा करेंगे, तो हम बहुत आशीषों के वारिस बन जाएंगे। आशीषें हमारे पीछे भागेंगी। हम आशीष देने वाले बनेंगे, हम आशीष मांगने वाले नहीं। हम चंगाई के लिए प्रार्थना करने वाले बनेंगे। और कलीसिया में आपसे कहना चाहती हूँ, वसाई की कलीसिया, खुदावंद आपको उठाकर खड़ा कर रहा है। खुदावंद आपके द्वारा बड़े बड़े काम कर रहा है। खुदावंद आपको बाहर लेकर चल रहा है। खुदावंद आपके द्वारा आप जवान लोगों को आपको दर्शन दे रहा है, बूढ़े लोगों को आपको स्वप्न दे रहा है। हर एक प्राणी से नई भाषा में बात कर रहा है। वो कह रहा है, हर एक प्राणी पे मैं अपना आत्मा ले लूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, सबको आत्मा में भर दूंगा। इन दिनों के बाद जब मेरी कलीसिया उठ के खड़ी होगी तो ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा ले लूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, सबको आत्मा से भर दूंगा। अगर आपको पवित्र आत्मा की परिपूर्णता नहीं मिली है तो आज पुकारिए। खुदावंद आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है। अन्य भाषाओं से भर के मनुष्य और स्वदूतों की बोलियां बोलने वाला बनाना चाहता है। खुदावंद एक ऐसी कलीसिया से जो अपना भोज कर रही थी थक चुका है, अब खुदावंद एक ऐसी कलीसिया के लिए नीचे उतर आया है जो उसके साथ मिलके एक नया बैंक्वेट देने जा रही है, जिसको देखकर बाहर का संसार, प्रकृति, यूनिवर्स झूम उठेगा और सुबह का सूरज अब आने वाले दिनों में नई रीति से झूम के आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का आत्मा
बड़े बल के साथ आपके बीच में जुम्बिश कर रहा है। आपकी बीमारियों से, आपकी तकलीफों से, आपकी विपदाओं से आज की सुबह आपको आज़ाद कर रहा है, नया बल दे रहा है, उकाब की नाई बना रहा है। थकिए मत, निराश मत होइए। ये समय जो खुदा ने दिया है, इसका भरपूर फायदा उठाइए, भरपूर रिश्ता बनाइए। इसमें खुदा की आवाज़ सुनिए, आवाज़ के द्वारा आगे चलिए, आवाज़ के द्वारा राजा से बातचीत करिए। अपना भोज करना बंद करिए, अपना बैंक्वेट, एक सेपरेट बैंक्वेट देना बंद करिए। गेट इन्वॉल्व इन द बैंक्वेट ऑफ द किंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सह किया हुआ परमेश्वर, इस घड़ी कलीसिया को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और आपसे कहना चाहते हैं, नया मनुष्य प्रभु हमको बनाओ, जीवन दाता हो, मन में आ जाओ, नई ज्योति और नया अनुभव हमको दे जाओ। नया पात्र प्रभु हमको बनाओ, जिसमें धन तेरा होवे। हालेलुया। आज की सुबह खुदावंद आपको और मुझको एक नया पात्र बना रहा है और इसमें अपना धन रख रहा है। We are becoming rich with the riches of heaven. Thank you, Master. Sweep over the soul of your people, Lord. करता समर्पण आत्मा जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। हे प्रभु पिता हो धन्यवाद, नया बनाओ अपने लिए। Lord, make me new. We surrender at your feet, Lord Jesus. Thank you, Master, for this day. Revived us. You have revived us. You have replenished us. We are new people, ready to serve you in a new way. नए तरीके से हम तेरी सेवा करने के लिए तेरे भोज में आज शामिल होते हैं। हमको संभालो और आगे ले चलो। अब तक तूने हमें संभाला है, आगे भी हमारी अगुवाई कर, यीशु के नाम से।